যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো Respected scholars, learned colleagues, and dear students, today I present myself before you on the occasion of the celebration of the 165th birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore on behalf of the Patna University fraternity. I welcome you all in this event from the digital studio of Patna University, Patna. Tagore is one of the most luminous figures in world literature, a poet, novelist, dramatist, philosopher, educationist, and cultural visionary. To speak of Tagore is to speak not merely of a writer, but of a mind that shaped the intellectual self-understanding of the modern India, and indeed of the modern world too. Tagore was born in 1861 in Calcutta in a family deeply associated with Bengali Renaissance. His was a household where literature, music, philosophy, and reform were part of daily life. He grew up not in a narrow academic enclosure, but in an atmosphere of creative freedom. That freedom perhaps became the governing principle of his entire life and work. He later founded Shanti Niketan and Vishwa Bharati, institutions that embodied his conviction that education must connect the human spirit with nature, imagination, and universal culture. Tagore's literary achievement is vast and difficult to contain within a single category. He wrote poetry, short stories, novels, essays, plays, songs, and critical reflections. He also translated and reworked his own texts, thereby becoming not only an author but also a mediator between languages and cultures. This is particularly important in understanding his international reputation. A major landmark in his literary career was Gitanjali. The English Gitanjali brought him global fame and the Nobel Prize in 1913. Yet, it is important to remember that the English version is not a simple, direct translation of a single Bengali text. It is a creative representation of Tagore's poetry, especially lyrics in English prose form. In that sense, Tagore becomes both poet and translator of himself. The work gained extraordinary influence partly through the mediation of W.B. Yeats, who helped present Tagore to the Western world. One of the most famous lines from Gitanjali reads, "Where the mind is without fear and the head is held high." The line has entered the moral memory of modern India. It is not merely poetic, it is philosophical and political. Tagore imagines a future in which the human mind is free from fear, knowledge is free, and society is not divided by narrow domestic walls. The closing wish into that haven of freedom, "My Father, let my country awake," shows that freedom for Tagore
is not only political independence but a state of ethical and intellectual awakening. Tagore's spiritual version of Gitanjali is deeply humanistic. He does not present God as distant or inaccessible. Rather, divinity is encountered through humility, service, and inward surrender. Another well-known line says, "Leave this chanting and singing and telling beads." The meaning is clear. True spirituality is not ritual alone. It is realized in life, in walk, and in compassion. This is one reason Gitanjali remains relevant. It speaks to the conscience, not merely to the devotion. Gora, one of Tagore's greatest novels and among the most intellectually demanding works in modern Indian fiction, is not just a novel of plot, but a novel of ideas. It probes caste, religion, identity, and nationalism. The central character begins with rigid beliefs and ideological certainty, but the novel gradually exposes the fragility of those certainties. Through this transformation, Tagore asks a profound question: what is the basis of human identity? A striking line from Gora declares, "The country is not mine alone, it is for all." The spirit runs through the novel. Tagore resists the reduction of identity to religion, caste, or birth. He suggests that society becomes morally healthier when it moves beyond exclusion and sectarian pride. Another memorable insight from the novel is, those who merely live according to rule do not advance society. The statement is significant because Tagore here opposes mechanical conformity and defends inner moral freedom. Tagore's critique of nationalism is equally important. His lectures on nationalism, delivered in 1916 and later published as Nationalism, remain among his most controversial and enduring public writings. Tagore saw the nationalism, when transformed into an idol, could become violent, exclusionary, and spiritually empty. He was not opposed to the freedom of India, but he was deeply suspicious of nationalism when it became aggressive or mechanical. In Nationalism, Tagore warns against a civilization built only on power and competition. One of the most famous ideas from this text is his insistence that the political and commercial civilization of the West had created dangerous forms of dominance. He also argues that the nation is that aspect which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose. This is one of his most important insights. It means that a nation becomes dangerous when it is treated as a machine rather than a moral and ethical community. Tagore's shorter fiction also reveals his human imagination. In Kabuliwala, he moves beyond national or cultural difference to show the tenderness shared between fatherhood, memory, and human affection. In The Home and the World, he examines the tensions between personal feeling, political commitment, and moral complexity. These works show that Tagore was never simplistic. He understood the complexity of
human motives and social change. If we look across Tagore's work, one central pattern emerges. He consistently values of freedom, inwardness, and human dignity. He distrusts dogma, whether religious, social, or political. He celebrates beauty, but never as ornament alone. Beauty in Tagore is tied to truth, ethical sensitivity, and openness to the world. In this program, we would like to focus on and discuss three aspects of Tagore's creative persona. Number one, artistically creative. This section will be hosted by Dr. Rakhi Kumari, Principal, College of Arts and Crafts of Patna University. Secondly, literarily creative, which will be hosted by Dr. Kalpana Nakhan, Assistant Professor of Department of Bengali of Patna University. And lastly, musically creative, that will be hosted by Professor Neera Chaudhary, Dean, Faculty of Humanities, Patna University, and Professor Arvind Kumar, former Head, Department of Music, Patna University. With this, I once again welcome you to Tagore's world of Anand, of Mangal, and of truth. Anand lok mein, Mangala lok mein, Viraje Satya Sundar. Thank you. धन्यवाद. नमस्कार, मैं कल्पना खान, सहायक प्राध्यापक पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में बांग्ला शिक्षिका हूँ। मैं रविंद्र साहित्य के बारे में कुछ शब्दों आप लोग को सुनाने चाहती हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर एक महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और शिक्षाविद थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और पश्चिम बंगाल में। पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर, माता शारदा देवी थे। बचपन से ही उनमें साहित्य और संगीत के प्रति विशेष रुचि था। रविंद्र ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे महान साहित्यकार थे जिनके विचारों और रचनाओं ने केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनकी रचनाएं हमें बड़े सपने दिखाने और मानवता का सम्मान करने, सबार ऊपर मनुष्यत्व ताहार ऊपरे कुछ नहीं, और प्रकृति से प्रेम करने के लिए शिक्षा देती है। उन्होंने सिद्ध किया कि शब्दों में समाज को बदलने की शक्ति देती है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी। 16 साल का उम्र में भानु सिंह के नाम से वैष्णव पद लिखा। उनकी कविताएं प्रकृति प्रेम, आध्यात्म और मानवता विषय पर आधारित है। उनकी कविता और गीत में नदियाँ, पेड़, फूल, पंछी और ऋतुओं को वर्णन मिलती है। उन्होंने बांग्ला भाषा में साहित्यकार लेखन किया, लेकिन उनकी रचनाओं का अनुवाद विश्व के प्रमुख भाषाओं में हुआ। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध दिलाए। वर्ष 1913 में उन्होंने गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे। गीतांजलि सिर्फ किताब नहीं, एक प्रार्थना भी है। कवि अपनी पत्नी, बेटी, एक बेटा को अकाल मृत्यु से
शोक में डूबे जाते हैं और ईश्वर से संवाद शुरू करते हैं। यदि संवाद गीतांजलि के गीत बने, प्राण भरिए तृषा हारिए मोर आरो 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 दाओ प्राण। ये मृत्यु से हार नहीं, जीवन का और गहराई से जीने का मांग है। अपनी कविताओं में ठाकुर हमें डर से मुक्ति का और स्वाभिमान से सिर ऊंचा रखने का दर्शन देते हैं। चित्त जैसा भय शून्य, उच्च जैसा माथा। टैगोर ओकाले ऐसे कवि है जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बने। उन्होंने हमारे राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना की। जनगण मन किसी राजा का स्तुति गान नहीं है, बल्कि भारत भाग्य विधाता यानी उस चेतना का संबोधन है जो भारत का निर्माण करते हैं। कविताओं के अलावा टैगोर ने 2000 से अधिक गीत, 12 उपन्यास, 8 नाटक, सैकड़ों कहानियाँ और निबंध लिखे। उनके प्रसिद्ध रचना में गोरा, घरे बायरे, काबलीवाला, डाकघर और भिखारिनी शामिल है। उनके उपन्यास और कहानियाँ मानवीय भावनाओं, सामाजिक समस्या और नैतिक मूल्यों के दर्शाती है। घरे बायरे में उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रवाद जब संकीर्ण हो जाता है तो वो मनुष्यों के मनुष्य से लड़ता है। संदीप का चरित्र उसी उग्रता का प्रतीक है जो स्वदेशी के नाम पर गरीब मुस्लिम व्यापारी को दुकान लूटता है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि संपूर्ण रविंद्र साहित्य हमारे देश अमूल्य धरोहर है। उन्हें अपने साहित्य से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में मानवता को अपनाना चाहिए। मैं रविंद्र की एक प्रसिद्ध पंक्ति के साथ अपना संबोधन समाप्त करना चाहूँगी। यदि तोरे डाक सुने कोई ना आसे तभी एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। यदि तोरे डाक सुने कोई ना आसे तभी एकला चलो रे। नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। आज विश्व गुरु देव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 165वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको सादर नमन करती हूँ। भारतीय साहित्य में रविन्द्रनाथ ठाकुर की ख्याति विश्व कवि के रूप में होने के साथ साथ एक समर्थ कथाकार, नाटककार और सामाजिक चिंतक के रूप में भी है। उनकी समस्त रचनाओं में अपने समय की गहरी समझ दृष्टिगत होती है। उनका जन्म कोलकाता के जोरासाको में हुआ था। उनके परिवार का वातावरण कला से जुड़ा हुआ था। परिवार के अनेक सदस्य दार्शनिक, कवि, साहित्यकार थे, जिसके कारण घर में देश विदेश से दार्शनिक, साहित्यकार, कवि ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। उनके भतीजे अवनींद्रनाथ ठाकुर स्वयं एक प्रख्यात चित्रकार थे। इन सभी से प्रभावित होकर उन्होंने 68 वर्ष की आयु में चित्रांकन करना प्रारंभ किया। चित्रांकन वो भी वहाँ से उन्होंने शुरू किया कि वे कविता लिखते समय जो गलतियाँ होती थी उसे वो मिटाते थे और उसके बाद जो अकल्पित
आकार बनता था वही चित्र का रूप लेने लगा। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये भी एक कविता है जिसके ऊपर उन्होंने किस तरह से इंक पेन का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार्य किए। ये भी उनका कविता ही है जहाँ पे उन्होंने इंक पेन का प्रयोग किया, और कभी कभी वो इंक पेन के साथ बैकग्राउंड में वो हाथ से इंक को रब भी करते थे, या रुई का फाहा में इंक लगा के भी उसको प्रयोग करते थे। आप इस चित्रों के माध्यम से उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ये उनका रेखांकन है, ये रेखांकन है। प्रारंभ में वो श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट में ही वो काम करते थे। धीरे धीरे उनके चित्रों में कलर आना लगा, जो कि आप बाद के कामों में आप देख सकते हैं। इनके जो प्रथम चरण के जो कार्य थे वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट थे, लेकिन बाद में इन्होंने कलर का प्रयोग करने लगे। वो भी इनका जो बैकग्राउंड होता था वो डार्क होता था और उसके ऊपर लाइट कलर में काम होता था, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इनके चित्रों में नारी का सृजन ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके भारतीय नारी का उन्होंने चित्र पोर्ट्रेट सभी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फेस। इनका जो चित्र जो कला यात्रा है उसमें पाश्चात्य कला के करीब है, और साथ ही इनमें चाइल्ड आर्ट भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए, बाद में इन्होंने कलर का भी प्रयोग करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, इन्होंने कुछ जानवरों और पंछियों का भी चित्रण किया है। आप इसमें देख सकते हैं, वे आकृतियाँ आपको साफ दिखेगी। देखिए, इसमें आप उसको साफ देख सकते हैं। एनिमल फॉर्म है जिसमें डार्क बैकग्राउंड है, उसमें लाइट आपको उभर के सामने दिखेगा। ये इन्होंने 1936 में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, पेरिस में हुआ था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। और वो जो प्रदर्शनी था वो छोटे आकार के थे, लेकिन संयोजक की दृष्टि से, कला की दृष्टि से बहुत उत्तम थे। एक कविता है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि 1913 में गीतांजलि काव्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने पहली ललित कला संकाय की स्थापना शांति निकेतन में की थी। शांति निकेतन का ललित कला संकाय प्रथम ललित कला संकाय है अपने देश का, भारत का। इनकी कविता है एकला चलो रे, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। यदि आपकी पुकार सुनने को कोई ना आए तो अकेले चले जाना। यदि सब डर के मारे चुपचाप हो जाए, ए दुर्भाग्य के मारे अपना मन खोल और अकेले बोला। यदि सब मुड़ जाए और तुम्हें सुनसान रास्ते में छोड़ दे, ए दुर्भाग्य के मारे तो कांटे भरे रास्तों पर अकेले चलो। यदि रात में तूफान के समय कोई रोशनी न जले तो ए दुर्भाग्य के मारे तो अपनी छाती की जलती हुई आग से स्वयं रोशन कर अकेले। और एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि 17 मार्च 1936 को पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में, जो कि वर्तमान में जयप्रकाश नारायण सभागार है, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नागरिक अभिनंदन किया गया था। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग रविंद्र संगीत के बारे में चर्चा करेंगे। रविंद्र संगीत में शब्द और स्वर दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। इस संगीत को हम लोग अर्धनारीश्वर स्वरूप के रूप में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए गीत एवं स्वरबद्ध किए हुए गीत की भूमि
हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ही रही है। इस संगीत की संस्कृति हिंदी प्रदेश के साहित्य और संगीत से घनिष्ठ संबंध रहा है, जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत के मूल में राग है। इनके गीतों का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें सभी प्रचलित रागों का ज्ञान होता है। राग संगीत के जो स्वरूप परंपरागत रूप से आए हैं उस रूप में यहाँ नहीं है। इन्होंने कुछ रागों को जो अगल बगल के राग है उसमें उन्होंने मिला दिया है। जैसे भैरवी में असावरी तोरी, पूर्वी में यमन, केदार में हमीर आदि रागों की छाया आती है। और इन्होंने इसलिए यह किया है सो गाने के शब्दों के भाव की यह व्यक्ति सुंदर ढंग से, सौंदर्यात्मक ढंग से हो सके, इसलिए इन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं। जब हम इनके संगीत पर और संगीत के धुनों का जब अवलोकन करते हैं तो देखते हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रचलित शैली है, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा आदि के साथ लोक संगीत, बाउल, भटियाली और इसके अलावा पाश्चात्य संगीत का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो काव्य की रचना की थी उनका नाम है भानु सिंह की पदावली, बंगला में कहते हैं भानु सिंह पदावली। इसमें जो पद आए हैं उस पर मिथिला के कवि विद्यापति का प्रभाव है। इन्होंने विद्यापति के काव्य और या पद को ध्यान में रखते हुए उसी मीटर पर इन्होंने सर्वप्रथम अपने काव्यों और गीतों की रचना की है। तो हम चाहेंगे से एक दो पद मैडम गाकर सुनाए भानु सिंह पदावली के कोई पद। सावन गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे। सावन गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे। कुंज पथे सखी कैसे जाऊं अब, कुंज पथे सखी कैसे जाऊं अब ला कामिनी रे। सावन गगने घोर घन घटा। इनके गीतों पर ध्रुपद का प्रभाव है। यह प्रभाव इनको वहाँ अपने घर के वातावरण और विष्णुपुर घराने के गायकों के कारण आई है। ख्याल पर भी बहुत से रचना है। जो प्रचलित बंदिश है उस पर भी इन्होंने रचना की है बैठाई। जैसे हिंदी में बहुत फेमस रचना है भैरव का है, जागो मोहन प्यारे, सावरी सुरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे। इस पर इन्होंने बांग्ला में लिखा है, मन जागो मंगल लोके, अमल अमृत में नभ आलोके, ज्योति विभासित चोखे। मतलब इस तरह इनको बहुत से रचना इनकी मिलती है जो हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद या ख्याल की बंदिश है उस पर इन्होंने बैठा करके, उसके मीटर बैठा करके उसी के धुन पर इन्होंने रचना की है। जब हम इनके सभी गीतों का अवलोकन करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से हमें कुछ पर्याय माने भाग
प्रकार कह सकते हैं उसको, उसके गीत मिलती है, जिसमें है पूजा गीत, स्वदेश, प्रेम, प्रकृति, नृत्य नाटक और विचित्र प्रकार जैसे अनुष्ठानीय गीत इत्यादि के गीत मिलते हैं। सबसे पहले पूजा पर्याय के गीत। इस प्रकार के गीतों में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नैवेद्य, खेया और बाद में गीतांजलि के गीत आते हैं। नैवेद्य का अर्थ है पूजा का निवेदन, यह पूजा विवेक की पूजा है। खेया का अर्थ है नाव, यहाँ निवेदन हृदय से उस स्तर पर उतर आया है जहाँ भाषा को पार कर कविता की ध्वनिमय व्यंजना व्याकुलता में सार्थक होती है। इनके पूजा गीतों में प्रधान विषय वस्तु है अंतर बाहर के योग संबंधी भावना और बाउल से संबंधित रहस्यमय भावना। बाउल बंगाल की एक विशेष शब्द है। आध्यात्मिक, दार्शनिक, रहस्यमय भाव संपन्न गीतों को बाउल गीत तथा उसके गाने वाले अवधूत साधुओं को बाउल पुकारा जाता है। यह बंगाल का लोक गीत एक तरह से मान सकते हैं, जिसमें ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन आया है। तो रविन्द्र संगीत में पूजा पर्याय के बहुत से गीत मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप एक दो गीत प्रस्तुत है। आनंद लोके मंगला लोके विराजो सत्य सुंदर महिमा तब उद्भाषित महागगन माझे महिमा तब उद्भाषित महागगन माझे विश्व जगत मणिभूषण बेष्टित चरणे आनंद लोके मंगला लोके विराजो सत्य सुंदर। इसके बाद आता है प्रेम पर्याय के गीत। बंगाल में प्रेम काव्य की तीन विशेष रचयिता निधि बाबू, मधुकांत और बिहारी लाल हुए हैं, जिनका गहरा प्रभाव रविन्द्र संगीत में मिलता है। निधि बाबू के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। निधि बाबू मुख्य रूप से बंगाल में टप्पा के उन्नायक प्रचारक माने जाते हैं और उन्होंने अपने गायकी पर कहते थे कि यह छपरिया टप्पा है, यह हम लोग के लिए विशेष महत्व रखता है। तो हमारे यहाँ की टप्पा जा कर के वहाँ बंगाल में वहाँ की संस्कृति में रच बस गई, ये बहुत बात है। इस टप्पा पर भी बहुत से गीतों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। प्रेम उनके गीत में है, उनके गीतों में कहीं प्रिय की प्रधानता है तो कहीं प्रिया की, कहीं प्रणय का पूर्वाभ्यास है और कहीं प्रेम की क्या कहते हैं साधना के लिए है। प्रेम मुक्त उन पर जो प्रभाव है वो वैष्णव काव्य का है। वैष्णव काव्य में जो प्रेम मिलता है उसी प्रेम को इन्होंने अपने शब्दों में उच्चारित किया है। इस पर्याय के कुछ गीतों का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। हम दोनों बन में झूले थे वो दिन, फूलों से सजा झूलना। हम दोनों बन में झूले
सजा झूलना, वही याद मन में रह रह जागे, ये तुम मत भूलना भूलना भूलना। हम दोनों बने में झूले थे वो दिन, फूलों से सजा झूलना। प्रकृति उनका मुख्य विषय रहा है। प्रकृति प्राय के बहुत गीतों की रचना इन्होंने की है। कवि ने प्रकृति में कभी मानवीय स्वभाव और रूप रस का दर्शन किए हैं, तो कभी अनंत विस्मय बोध का, कभी कभी अदृश्य अनजानेपन का देवता भव से कवि पूछते नजर आते हैं। तो काव्य में प्रकृति के सभी रूप, सभी रस, सभी गंध का इन्होंने वर्णन किया है। और प्रकृति हमारे चारों तरफ है, हम उसी में जीते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में निवास करते हैं। इस तत्व को उन्होंने बहुतायत से अपने गीतों में उकेरा है। आज रिमझिम मुखरित बदरी दिन, आज रिमझिम मुखरित बदरी दिन, जानू ना ना जानू कुछ भी मन को ना भाए रे। रिमझिम मुखरित बदरी दिन, आज रिमझिम मुखरित बदरी दिन। रविन्द्रनाथ टैगोर के समय हम लोग गुलाम देश में रहते थे। उस समय यूरोप में नवजागरण का काल माना जाता है। इस नवजागरण का प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर पर पड़ा और उन्होंने इससे प्रभावित होकर के अपने गीतों में स्वदेशी भाव से युक्त गीतों की रचना की। पाश्चात्य दर्शन, राजनीतिक, साहित्य, इतिहास तथा विज्ञान के क्षेत्र में नवजागरण आया और इस नवजागरण को कार्यान्वित करने के लिए खासकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ही अपनाया गया। गीतों के क्षेत्र में तो हम कहने की बात ही क्या है। रविन्द्रनाथ में देश प्रेम के गीतों का स्थान, काल, पात्र, धर्म विचार करना मुश्किल ही है। इसमें सांप्रदायिकता की भावना बू तक नहीं आई है, बस प्रेम की भावना है, भक्ति की भावना है। तो एक स्वदेश प्राय के गीत तेरी आवाज़ पे कोई न आए प्रस्तुत है। तेरी आवाज़ में कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। तेरी आवाज़ में कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। तेरी आवाज़ में कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। अब इसके बाद आता है विचित्र पर्याय या अनुष्ठानिक गीत। इस पर्याय का कोई सूत्र बंधन नहीं है। मूल में कहा जाता है इन्होंने शांति निकेतन में विभिन्न पर्वों को मनाने के लिए या वर्षा ऋतु के भाव को दर्शाने के लिए, होली, इसी तरह से विभिन्न त्योहारों को दर्शाने के लिए इन्होंने गीतों की रचना की थी, जिसमें विभिन्न अवसरों पर गाया जाता था। इस गीत को इन्होंने जो पारंपरिक रूप से जो जिस समय लोक संगीत में व्यक्त था,
उस गीत के भाव लेकर के ही सृष्टि की थी, उसी के भावभूमि पर इन्होंने अनुष्ठानी गीतों की रचना की थी। उदाहरण स्वरूप ये उजाला है हमारा विश्व में है भरा, ज्योति किरण धोए नयन ज्योत ने मन भरा। ये उजाला है हमारा विश्व में है भरा, ज्योति किरण धोए नयन ज्योत ने मन भरा। और इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न पर्यायों के गीतों की इन्होंने रचना की है, जो उस समय प्रासंगिक तो थी ही, आज भी हमारे समाज को उन्नत, शिक्षित, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विकसित करने के लिए यह गीत उन्नय का कार्य करती है। जब हम इनके गीत को जब अवलोकन करते हैं तो इन्होंने अपने गीतों में छंद पर विशेष ध्यान दिए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो प्रचलित ताले हैं उस पर तो इन्होंने कार्य किया ही है, साथ ही इन्होंने साहित्य में आए हुए छंदों के अनुसार इन्होंने नई नई तालों की रचना की है, जैसे नव पंचम ताल, झंपक ताल, एकादशी ताल इत्यादि की इन्होंने रचना की है, जो शब्द में आए हुए छंद में शब्द की मात्रा कटे नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह का निर्माण किया है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस संगीत की व्याप्ति जन जन में होनी चाहिए, इसके प्रचार प्रसार हिंदी के जातीय क्षेत्र में होनी चाहिए, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।